And the thing is, so the dancing girl transferred the blame onto the other person, and she said that she was roaming around in this lane again and again because she had to visit the goldsmith shop, and she had given some gold to him to make jewelry out of it. And the person was dishonest, and he was making excuse for not making her ornaments in time. So he kept on asking her to come after some time. Due to this reason, she had to go to his house at least a dozen times. So the dancing girl said it was a fault of the goldsmith. इस पूरे पैराग्राफ में ये इसका सेंस है, दैट इज इन इंग्लिश. हिंदी में सिंपल सा है कि डांसिंग गर्ल ने जो दूसरे बंदे पे ब्लेम लगाया, उसने ये कहा कि वो रोमिंग कर रही थी क्योंकि उसे गोल्डस्मिथ के शॉप तक जाना था, और उसने उसको गोल्ड दे रखा था जिससे उसे ज्वेलरी बनानी थी, वो बहुत बेईमान था, एक्सक्यूजेस करता था कि ऑर्नामेंट्स को उसने टाइम से बना के नहीं दिया, तो बार बार उससे कहता रहता था कम आफ्टर सम टाइम, कम आफ्टर सम टाइम. और यही रीजन है कि वो जो है क्या नाम है कई बार उसके पास गई, और यही उसका रीजन था फोल्डर गोल्ड्समिथ. चलिए नेक्स्ट पढ़िए. नेक्स्ट पढ़िए इसके आगे. That was when his bricklayers saw me. It was my fault, my lord. It is not my fault. ये होगा it is not my fault. It was my fault थोड़ी, अभी तो वो गोल्ड्समिथ थोड़ी मानेगा अपनी बात. It is not होगा. Yes sir. हाँ. Yes sir, it's not my fault, my lord. It's the demand goldsmith Damned. fault. Damned होता है. Poor thing. DAMNED absolutely होगा. right. नहीं सर damned. अच्छा हाँ सर, damned. ऊपर है. Damned होता है. Poor thing, she absolute right. Throw the king, waiting the evidence. You have got the real. Yes sir. Thought the king, waiting the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding. At once the king blameless searched for the goldsmith. ये बैलिफ्स होते हैं. बैलिफ्स होते हैं hiding in a corner of his. हाँ, ये बैलिफ्स होते हैं. बैलिफ्स BAILIFFS. बैलिफ्स होते हैं राजा के मंत्री, राजा के तो आदमी जो होते हैं उन्हें बोलते हैं. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. Sir, next para पढ़े? नहीं, बस पहले इतने समझा देते हैं. So further, dancing girl, she said that when the bricklayer saw her and got distracted, so it was a fault of the goldsmith because of whom she was roaming in the lane again and again. Now the king ordered that the king said that yes, poor dancing girl is totally right. Then he thought and finally said that real culprit is the goldsmith, called the goldsmith. So the bailiffs of the king court, they started searching of the goldsmith and brought him to the court. The goldsmith was hiding inside the shop and he was very feared to be arrested. When he was brought in front of the king, then he told his own story. तो डांसिंग गर्ल ने कहा कि जे यही कारण है, ब्रिकलेयर ने मेरे को देखा, वो मुझसे डिस्ट्रैक्ट हो गया मेरी ये घुंघरू की आवाज से, और मेरी गलती नहीं है, तो गोल्डस्मिथ की वजह से मुझे बार बार रास्ते में आना जाना पड़ रहा था. राजा ने कहा हाँ भाई, लड़की तो सही कह रही है, गलती उसकी नहीं है. तो राजा ने कहा ले आओ उसको, गोल्डस्मिथ को, बेवकूफ की वजह से ऐसी है. तो वो लेके आया. तो अब गोल्डस्मिथ जैसी सामने आया, गोल्डस्मिथ की अपनी कहानी थी. क्या कहानी थी, पढ़िए जरा. My lord, he said, I am a poor goldsmith. It's true I made his dancer come many times for my door. To my door. I gave her excuses because I could not finish making. Yes, sir. To my door. I gave her excuse because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant order. They had a wedding coming and they would not wait. You know how important rich men are. Who is this Important rich rich man merchant तो नहीं who होगा, kept you? impatient होगा. Important rich men are नहीं होगा. You know how important rich men are थोड़ी होता है, how impatient rich men are होता है. Sir, yes, impatient. Impatient. Yes, sir. चलिए, हो गया पैराग्राफ. Yes, sir. पूरा पैराग्राफ हो गया सर. नेक्स्ट करना पड़ेगा. ओके. या पढ़ूं सर नेक्स्ट? सो नहीं ठीक है, हाँ पढ़ दो नेक्स्ट भी पढ़ दो, एक साथ ही बता देंगे. Yes, sir.
Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? Okay. So Sir, complete. हाँ, तो ही सेड, उसने कहा कि अब वो कौन कहता है आपका गोल्ड स्मिथ, तो ही सेड दैट डांसिंग गर्ल वाज राइट, ही मेड मेनी एक्सक्यूजेस, हाँ मैंने एक्सक्यूजेस बनाए, एंड मेड हर विजिट शॉप अगेन एंड अगेन, और उसने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, मैंने उसे अपने शॉप में कई बार बुलाया, उसने कहा बट इट इज नॉट माई फॉल्ट, ये भी इसमें मेरी गलती नहीं है। अब वो कहता है ही हैड एन ऑर्डर फ्रॉम अ रिच मर्चेंट, दे हैड वेडिंग एट देयर प्लेस, एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर था जो उनके घर में शादी थी, ठीक है, एंड आई वर इन अ हरी टू गेट दैट ऑर्डर, और मुझे बहुत जल्दी थी उस ऑर्डर बनाने की क्योंकि उनका ऑर्डर था, दैट्स द रीजन व्हाई डांसी गर्ल का ऑर्डर जो है डिले हो गया। अब लास्ट में यहाँ पर किंग ने इस पैराग्राफ में कहता है द किंग आस्क्ड द गोल्डस्मिथ टू नेम दैट रिच मर्चेंट, फिर नाम बताओ उसका, फिर कौन था वो, तुमने ऐसे कैसे किया भाई, एक की मैंने शादी के चक्कर में मैंने कि जो गरीब है तुमने इसका टाइम डिले कर दिया, क्या फायदा हुआ, बताइए, फिर रीड करिए आगे। The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house, whose wall had fallen. Now justice had come full circle, thought the king. Back to the merchant, when he was rudely summoned समंड back to होगा, the court. SUMMONED, समंड मीन्स बुलाना। Summoned back to the court, he arrived crying, "It was not me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." But the हाँ, तो next गोल्डस्मिथ, पढ़ना है? हाँ नहीं, तो गोल्डस्मिथ यहाँ पे एक ही बात बोलता है, ही सेड दैट मर्चेंट कि हाँ ठीक है, तो गोल्डस्मिथ को बताता है ये वो मर्चेंट है, वो बता ले जिस मर्चेंट का वॉल, वही मर्चेंट का नाम दोबारा घूम कर वही, ठीक है। अब जो है क्या नाम है, सर्कल जो है घूम फिर कर वहीं आता है। अब थीफ तो मतलब कि मर गया वॉल के अंदर से, मर्चेंट की जो ज्वेलरी गोल्डस्मिथ ने जो बना रहा था उसकी वजह से हुआ, दोबारा से मर्चेंट को बुलाया गया, अब वो रोने लगा, तो उसे पता था कि राजा तो बेवकूफ है, उसे तो सुना देगा मौत का मतलब कि क्या नाम है सेंटेंस सुना देगा कि अभी इसे मार दो। तभी उसने कहा कि भाई कि मैंने नहीं दिया था ऑर्डर, वो तो मेरे पिताजी ने दिया था, पिताजी तो मर गए, तो मेरी गलती थोड़ी है, हो गया हिसाब किताब। चलिए आगे। But the king consulted his minister and ruled decisively. It's true your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that हाँ, criminal इनहेरिटेड नहीं father होगा, of yours. इनहेरिटेड होगा, इनहेरिटेड होगा, इनहेरिटेड मतलब आप उनके वंशज हैं, वंश से हो। Yes, sir. Inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you never at the roots of his horrible crime. You must die. सो द किंग, अब किंग ने क्या किया, कंसल्ट किया मिनिस्टर से और एक डिसीजन लिया, ही गेव अ डिसीजन दैट द मर्चेंट्स फादर, की मर्चेंट का फादर ही मर्डर है, थीफ तो डाइड बिकॉज ऑफ हिम, थीफ तो मर गया उसकी वजह से। अब उसने कहा एज अ मर्चेंट फादर वाज नॉट अलाइव, कि मर्चेंट का फादर तो जिंदा है नहीं, तो समवन हैड टू, तो मिनिस्टर ने कहा जी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं, जब थीफ मर गया तो उसकी तो पनिशमेंट किसे मिलेगी, तो मर्चेंट के फादर तो है ही नहीं, अब क्या करें, तो उन्होंने कहा ये काम करो, जब मर्चेंट के फादर नहीं है तो किसी को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उन्होंने कहा कि काम करो मर्चेंट का सन है, मर्चेंट के सन को जो है क्या नाम है वो कल्प्रिट होगा, क्यों, क्योंकि उसे सब कुछ विरासत में अपने फादर से मिला है, ठीक है, तो इसका ही पनिशमेंट है, यही पनिशमेंट है, इससे अलावा दूसरा नहीं है, तो ही वुड हैव टू टेक द पनिशमेंट कि इसने गलत किया। तो ही फिर वो कहता है कि व्हाट ही हैज सीन, कि मैंने तो, ही एडेड दैट व्हेन ही हैड सीन द मर्चेंट फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैड फीलिंग, तब राजा कहता है कि मैंने जब पहली बार देखा तब मुझे लगा यही कल्प्रिट है, धोखेबाज यही है असली गुनहगार कल्प्रिट। सर आगे रीड कर। हाँ, तब उसने अनाउंस किया कि मर्चेंट को मरना है। चलिए पढ़िए।
Read. Read करिए, read.